प्रश्न संख्या 583। ये स्टेटमेंट मैडम टेबल पहला पूरक प्रश्न। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे प्रश्न के 5 भाग थे। प्रश्न के 5 भाग थे ए बी सी डी ई। इसमें से ए भाग का जवाब देने का माननीय मंत्री जी ने प्रयास किया है। वो भी सही नहीं है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि माननीय रेल मंत्री जी ने 14 मार्च 2012 को अपना रेल बजट भाषण में लंबित परियोजनाओं का जिक्र पैरा 18 में किया है, जिसमें उन्होंने नई लाइन, गेज परिवर्तन, दोहरीकरण, रेलवे विद्युतीकरण से संबंधित 487 रेल परियोजनाओं के पेंडिंग होने का जिक्र किया है। एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछा गया था इसी सत्र में, स्टार क्वेश्चन नंबर 382, और उसका आंसर 3/5/2012 को दिया गया। उसमें उन्होंने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, पेंडिंग प्रोजेक्ट 340 बताए थे। रेल बजट में ये 487 बताते हैं और इस प्रश्न में 340 बताते हैं। कितनी धनराशि की आवश्यकता है, ये इसमें भी इन्होंने 1,25,000 लाख करोड़ बताई है, और ऐसे ही ये 1.25 लाख करोड़ रुपए की दूसरी जगह भी बताते हैं। मेरा आपसे आपके माध्यम से कहना है कि माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर अनिल काकेदर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जिसका नाम था हाई लेवल रेलवे सेफ्टी कमेटी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 17 फरवरी 2012 को प्रस्तुत कर दी, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल से संबंधित दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश भी की थी, लेकिन इसमें कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी इसका जिक्र नहीं किया। दूसरी कमेटी रेलवे ने एक एक्सपर्ट ग्रुप के माध्यम से बताई थी, जिसकी अध्यक्षता सैम पित्रोदा ने की। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। इस एक्सपर्ट ग्रुप ने का विषय था मॉडर्नाइजेशन एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। उसमें उन्होंने 5.6 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में रेलवे के पास पेंडिंग प्रोजेक्ट कितने हैं और उस राशि की आवश्यकता कितनी है, क्योंकि 30 मार्च 2012 को जो बजट प्रस्तुत किया था रेल मंत्री ने, वो दूसरे रेल मंत्री थे। इन रेल मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नो शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर रेल प्रोजेक्ट। मैं ये जानना चाहता हूं कि टोटल प्रोजेक्ट कितने हैं और ये विरोधाभासी बयान क्यों आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी जवाब दें। Madam Speaker, yes, it is true that 340 projects all put together, gauge conversion, doubling, electrification, all are pending. But I would like to place before the August House, after the independence, we have gauge conversion almost completed, except 8,000 kilometers. 5,500 kilometers we are going to complete by the end of 12th plan. The remaining 2,500 kilometers after we have to going to complete. Coming to the doubling and electrification, we have completed 21,000 kilometers in gauge conversion, doubling 16,000 kilometers, electrification 22,000 kilometers. Doubling and electrification depends upon the need. Doubling, if one line is saturated, then we have to go for the other line for the doubling. Even the second line is also saturating, we will go for the third line like Delhi to Agra. Coming to the electrification, we have to see the rate of return. If it is rate of return is 14%, the freight we have to calculate. Accordingly, we have to go for the doubling electrification. Accordingly, we have completed 22,367 kilometers. Further, on the demand of the members of the parliament in this August House, from the last two decades, that is the will of the people, we are representing the people, the demand and desire of the people, that has accumulated 340 projects at about 45,000 kilometers, including the doubling
electrification, new lines. New lines, I will say, new lines, 129 projects is there, madam. What I am saying, madam, yes, some of the states has come forward, like Andhra, Karnataka, Maharashtra, Jharkhand. These are the states has come for the cost sharing, where we are going to make 50% of the cost sharing, and we are trying to complete the projects well in time. Further, madam, funds are constrained. Funds are constrained. I am further appealing to the Honorable Finance Minister and the Prime Minister. I think the Finance Minister is like, I have seen, I am a history student, the age era of Chandragupta Maurya, the golden age when Chanukya was there. In this era, I think Pranab Dada is a Chanukya. What I am requesting, the entire house, the entire was looking forward to you, because when 2 crores is their member of parliament fund, you have increased at a time 5 crores. We are glad, we are thankful to the Honorable Prime Minister, Chief Minister, Pranab Dada, Finance Minister. He may be. Now, what I am appealing to them, every member of, सुनिए no, please, every member of parliament is concerned. Every member of the parliament is concerned. The ongoing projects have to be completed. This is our aim and object. What I am saying, we will ready to complete. Our infrastructure is ready to complete in the 12th plan. If the Pranab Dada and the Prime Minister, Madam Sonia Gandhi is here, please guide them to give more money. We will complete all the projects. Thank you very much. दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। वित्त मंत्री जी चाणक्य है, मैंने ये प्रश्न नहीं किया था। मैंने पूछा ही नहीं था चाणक्य कौन है, इस सरकार का चाणक्य कौन है, ये प्रश्न मैंने नहीं किया था। फिर भी रेल राज्य मंत्री के माध्यम से पता चला कि हमारे वित्त मंत्री जी सरकार के चाणक्य हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कदम का। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा था, जो इन्होंने जवाब नहीं दिया, कि टोटल प्रोजेक्ट एक्चुअल में कितने हैं और कितने धन की आवश्यकता है। अगर ये धन सही नहीं बताएंगे चाणक्य को, तो चाणक्य प्रबंध कहां से करेगा? तो इसलिए ये धन तो सही बताएं कि कितने धन की आवश्यकता है। मैडम मेरा दूसरा सवाल, ये तो पहले जवाब दिया ही नहीं इन्होंने। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक रेल मंत्री है, दो रेल राज्य मंत्री है। मैंने प्रश्न किया था, इन्होंने कहा था कि कोई आपने मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है क्या? इन्होंने मुझे जवाब में दिया कि हमने कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बना रखी। रेल का क्या सिस्टम है? दे डू इन हाउस मॉनिटरिंग, चेयरमैन डू मॉनिटरिंग, GM do monitoring in zone, DRM do monitoring in division, and they don't involve member of parliament in monitoring system. और दूसरा मेरा ये कहना है कि एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया, SK मुनियप्पा साहब ने, कि जयपुर में गए थे, एक मीटिंग ली थी। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं, 2 रेल राज्य मंत्री इनके पास, क्या सारे स्टेट बांट करके इनको मॉनिटरिंग सिस्टम का जिम्मा नहीं दिया जा सकता? 8-10 मॉनिटरिंग स्टेट को ये मुनियप्पा साहब कर सकते हैं, बाकी सोलंकी साहब कर सकते हैं। खाली अधिकारियों पर छोड़ रखा मॉनिटरिंग सिस्टम इन्होंने। और अगर ये मॉनिटरिंग करेंगे तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी बुलाएंगे, जैसे इन्होंने जयपुर में बुलाया था, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया था, चीफ सेक्रेटरी भी आए थे। तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर सकते? मेरा तो सेकंड क्वेश्चन है आपके माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैडम। मेरा छोटा सा है, 2005 और 6 में बीकानेर संसदीय क्षेत्र के अनूपगढ़ से श्री कोलाय नई रेल लाइन, जो सेना की भी डिमांड है, इन्होंने घोषणा की थी 5 और 6 में, वो आज तक पूरी नहीं हुई। उसकी स्टेटस क्या है? लोग कहते हैं फाइल खो गई। ये फाइल खोने वाले अधिकारी भी कौन है, उनका भी पता लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Madam, I want to learn all the members that regarding monitoring, my Minister of State of the Railways, they have been given charge zone-wise, not state-wise, as because allocation of the fund and everything to be made throughout the zone. Indian Railway has got 17 zones
and my two colleague ministers, they are in charge of the 8 and 6, and myself looking after 3. So the zone-wise monitoring has been there. I have to apprise my learned friend. श्रीमती